حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام على مولانا صاحب الدعوة النبوية وسنة المحمدية وعصمة الفاطمية وسنة الحسنية وشجاعة الحسينية وعبادة السجادية والمقاصد الباقية والقلوب الجعفرية والقلوب القاسمية وحجة الرزقية وجماعة التقوية ونقابة النقبية وحيبة الوسكية وغيبة الإلهية. أما بعد فقد قال رسول الله فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سواء. ہر بار کی طرح میں جملہ پھر ریپیٹ کروں گا. ماشاء اللہ سے جزاک اللہ سے آپ سبھی حضرات ایک عبادت سے دوسری عبادت میں شامل ہو رہے ہیں. آپ نے ابھی خطبہ جمعہ سنا، نماز جمعہ پڑھی، اس کے بعد اپنے لیے دعائیں کی، اپنے گھر والوں کے لیے دعائیں کی. اب آپ ایک عبادت سے نکل کر دوسری عبادت میں آ گئے ہیں. دیکھیے مرحوم کے سارے ثواب کی مجلس ہے. مرحوم کو سب جانتے تھے کہ ان کا اخلاق کیا تھا، ان کا کردار کیا تھا، کتنے شریف تھے. لہٰذا آپ سبھی افراد یہاں پر جمع ہوئے ان کے لیے، ان کو قربہ دینے کے لیے اور ثواب داریں حاصل کرنے کے لیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے جس آیت کا میں نے انتخاب کیا ہے گزشتہ جمعے میں جو مجلس تھی، یعنی ایک جمعہ چھوڑ کے پچھلے جمعے میں جو مجلس تھی، یہی آیت کا انتخاب میں نے کیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین. کیونکہ ایک آیت کے ذہن میں کئی مجلسیں ہو سکتی ہیں اور اس میں میں نے رجب علی خیاط کے بارے میں آپ کو بتایا. تو اسی سلسلے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر کے آگے بڑھ جاؤں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین. اے وہ لوگ، جو لفظی ترجمہ ہو رہا ہے، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لے آئے. اللہ ان سے مخاطب ہے، اللہ ان کو کہہ رہا ہے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین. تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ. آپ نے ابھی دو خطبہ سنا ہے، ایک دنیاوی خطبہ، ایک دینی خطبہ. دینی خطبے میں ابھی آپ نے صرف تقوی کے بارے میں سنا ہے. اسی لحاظ سے میں اس گفتگو کا آغاز کروں کہ اللہ تعالیٰ کس سے مخاطب کر کے کہہ رہا ہے؟ ایمان والوں سے، جو ایمان لے آئے ہیں. توجہ کریے گا، جو ایمان لے آئے ہیں، بے ایمانوں سے نہیں کہہ رہا ہے. توجہ کریے گا، ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے ایمان قبول کیا، جنہوں نے ایکسیپٹ کیا، ان سے مخاطب ہو رہا ہے کہ تقوی الہی اختیار کرو، یعنی متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور اس کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو سچوں سے مراد کون ہے؟ سچوں سے مراد یہاں پر جو تفسیر کی گئی ہے کہ کونوا مع الصادقین سے مراد صرف اور صرف اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ہے. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور اس سے پہلے کیا ہو جاؤ؟ متقی بن جاؤ. تقوی الہی اختیار کرو. یاد رکھیے گا، آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی، آپ کے رکوع ایکسیپٹ نہیں کیے جائیں گے،
آپ کے سجدے ایکسپٹ نہیں کیے جائیں گے جب تک آپ متقی نہ بن جائے. یاد رکھیے گا نماز اسی کی ایکسپٹ کی جائے گی, رکوع اسی کے ایکسپٹ کیے جائیں گے, سجدے اسی کے ایکسپٹ کیے جائیں گے جو متقی ہوگا. سلوات پڑھیں حضرت آل محمد. اور سلوات پڑھیں حضرت آل محمد. یاد رکھیے معصومین علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب ہمارے آخری نائب کا ظہور ہوگا, سلوات پڑھیں حضرت آل محمد. نہیں ملے گا, لہذا توبہ اگر کرنا چاہتے ہو تو ظہور سے پہلے, یعنی یہ اعلان ہو گیا ہے کہ متقی بننا چاہتے ہو تو ظہور سے پہلے متقی بن جاؤ. ایک اور کیا آپ نے کیوں؟ اس لیے کہ متقی بن جاؤ گے تو امام کے انصار میں کہلاؤ گے, امام کے سپاہیوں میں کہلاؤ گے, امام کے جانثاروں میں کہلاؤ گے. سلوات پڑھیں حضرت آل محمد. آسان کام ہے, سوال ہے آسان کام ہے کہ سخت کام؟ توجہ کریے گا. اور معصومین علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ نماز اسی کی قبول ہے جو متقی ہے, جس نے تقوی الہی اختیار کیا. اعمال اسی کی قبول ہے جو متقی ہے. اور اس پہ مہر بھی لگ گئی کہ جب ہم گواہی دیتے ہیں اذان میں تو کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان امیر المومنین وَإِمَامَ غور کریے گا, اشہد ان امیر المومنین وَإِمَامَ المتقین. امام علی علیہ السلام مومنوں کے امیر ہیں اور متقیوں کے امام ہیں. اب غور کرنا ہمارا کام ہے کہ ہم مومن میں شمار ہیں یا متقی میں شمار ہیں. سلوات پڑھیں حضرت آل محمد. ہر چیز سے پرہیز, ہر چیز سے اجتناب. جو حلال ہے اس کو آپ ایکسپٹ کیجیے, جو حرام ہے اس کو دور کیجیے. آپ کسی کی غیبت نہ کیجیے, آپ ماں باپ کی اطاعت کیجیے, ان کی فرما برداری کیجیے, چھوٹوں کا ادب کیجیے, بڑوں کا احترام کیجیے. مرحومین کے لیے آپ جو ہے ایصال ثواب کریے, کار خیر کریے. یہ تقویٰ ہے. ہر بری چیز سے اپنے آپ کو بچائیے, ہر حلال چیز کو اپنے اندر ایکسپٹ کیجیے, ہر حلال غذا کو اپنے اندر پہنچائیے, حرام سے اجتناب کیجیے. جب اس طریقے سے آپ ساری چیزوں کو پرہیز کریں گے تب آپ کہلائیں گے متقی. جب متقی ہو جائیں گے تو وقت کا امام خود کہے گا کہ ہاں یہ میرا چاہنے والا ہے. جب بات آ گئی تو میں عرض کرتا ہوں ضرور ایک نام ہے, بڑا مقدس نام ہے, اور نام ہی مقدس ہو گیا, مقدس اردبیلی. یہ کتنا بڑا نام ہے. اپنے اصل نام ہے ان کا احمد ابن محمد. ان کا اصل نام کیا ہے؟ احمد ابن محمد. لیکن مقدس ہوئے بعد میں, جب امام سے ملاقات ہوئی تو واقعی مقدس ہو گئے اور مقدس اردبیلی کے نام سے مشہور ہو گئے. رہنے والے تھے اصفہان کے, لیکن جب نجف اشرف میں یہ آئے تو ان کے شاگرد عبداللہ ابن علی, ان کے شاگرد تھے عبداللہ ابن علی. دیکھیے تقویٰ کیا ہے, متقی کون ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مقدس اردبیلی ہمیشہ جاتے تھے مولا علی کے روزے میں, نماز پڑھتے تھے, روزہ رکھتے تھے, اور جاتے تھے وہاں پر جو بھی مسائل ہوتے تھے اپنے پرچے پہ لکھتے تھے سوال, اور مولا کی ذریعے میں ڈال دیتے تھے, کو جواب مل جاتا تھا. ایک دن کے بعد, 2 دن کے بعد, یا عالم پاک میں مولا آ کے جو ہے بتا دیتے تھے. پتا ایسے ہی میں نے دیکھا کہ ایک دن مقدس اردبیلی مولا علی کے روضے میں داخل ہوئے اور زری کے قریب گئے. زری کا جو دروازہ تھا وہ بند ہو گیا. اور میں یہ منظر دیکھ رہا تھا, مقدس اردبیلی کو نہیں پتا کہ میں ان کا شاگرد عبداللہ ابن علی ان کے پیچھے تھا. لیکن میں نے محسوس کیا مقدس گئے تھے اکیلے, لیکن اندر سے 2 لوگوں کے بات کرنے کی آواز آ رہی تھی.
कोई और नहीं था, दूसरा शख्स वही था कि जिससे रोज मिलने जाते थे मुकद्दस अर्दबेली। आज जब बात हुई, दरवाजा खुला। क्या बात हुई? ये वाज़ेह नहीं हुआ, लेकिन बात करने की आवाजें आ रही थी। दरवाजा खुला, मुकद्दस अर्दबेली के माथे पर पसीना, परेशानी के आलम में, और मौला के रोजे से निकले और एक तरफ चलना शुरू कर दिया। अब वो रास्ता जो उन्होंने अख्तियार किया वो कूफे का रास्ता था। नजफ़ अशरफ से कूफे की तरफ जाने लगे। मैं परेशान हो गया कि ये क्या मंजर है कि रोज तो आते थे मुकद्दस अर्दबेली, लेकिन कभी इस तरीके का मामला नहीं होता था। आज क्या बात है कि मुकद्दस अर्दबेली ये सुबह के वक्त निकलते ही और फौरन कूफे का रास्ता था। मैं पीछे पीछे उनके गया कि जरा देखूं कि क्या मामला है। अब कूफा, क्योंकि उस टाइम का कूफा आज तो माशाअल्लाह से रास्ता बन गया है, ये ज़ायरीन जाते हैं, ये शुक्रिया का मकाम है कि कसम खुदा की हमारे लिए रास्ता इतना अच्छा हो गया, इतना सहल हो गया, इतना आसान हो गया है। वरना पुराने ज़माने में जब मुकद्दस अर्दबेली जिस रास्ते से गए थे वहाँ जंगल थी, झाड़ियाँ थी, रास्ते बने नहीं हुए थे। समझो करिएगा, उस आलम में मुकद्दस अर्दबेली कहाँ गए? कूफा। उसी में कहाँ गए? मस्जिद कूफा। आज जो मस्जिद कूफा है वैसी मस्जिद कूफा उस जमाने में नहीं थी। मुकद्दस अर्दबेली में बताऊं, ये 9वीं हिजरी का ये वाक़या है। आज 1447 चल रहा है। कितना चल रहा है? 1447। आप 500 साल पीछे जाएंगे तब आपको पता चलेगा। सलवात पढ़े तो क्या हमारा किरदार कसम खुदा कि अगर ऐसा होगा तो वक्त का इमाम खुद आएगा। तवज्जो करिएगा, शागिर्द पीछे पीछे। अब मैंने देखा कि मुकद्दस अर्दबेली मगरिब का वक्त हो गया, मस्जिद कूफा में दाखिल हुए और उस जगह पर गए जहां पर इमाम अली अलैहिस्सलाम को ज़रबत लगी थी। वहां पर जाकर बैठे। जब बैठे तो मैंने देखा मुकद्दस अर्दबेली किसी से बात कर रहे हैं। सामने वाला जो शख्स है वो पता नहीं चल रहा है, लेकिन इतना मालूम है कि जिससे बात कर रहे हैं वहाँ पर एक नूर है। गौर कर रहे हैं, वहाँ पर एक नूर है। मुकद्दस अर्दबेली ने क्या बात की, क्या बात नहीं की, फिर उसके बाद नमाज पढ़े, फिर उसके बाद लौटे। कहाँ के लिए? नजफ़ अशरफ के लिए, कूफे से। रात का सन्नाटा था, मैं पीछे पीछे था। मुझे अचानक से खांसी आई। उस खांसी पर मुकद्दस अर्दबेली पलटे और जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तो एक सवाल किया, कहा कि ये बताओ कब से तुम मेरा पीछा कर रहे हो? तवज्जो करिएगा, कब से तुम मेरा पीछा कर रहे हो? कहा शेर, मैं सुबह से आपको देख रहा हूँ। आप पहले मौला के रोज़े में गए, फिर उसके बाद वहां से निकले, रास्ता तय करते हुए आप मस्जिद कूफा आए। सलवात पढ़े हज़रत आले मोहम्मद। तो ये नहीं जाते रहिएगा, सलवात पढ़े हज़रत आले मोहम्मद। एक के बाद दूसरी इबादत पढ़ता ये मामला जो है लंबा हो जाता है। और सलवात पढ़े हज़रत आले मोहम्मद। मौला के रोज़े में गए, फिर वहां से आप सफर करते हुए यहाँ तक आए मस्जिद कूफा। अब ये रात का सन्नाटा है, लेकिन आप रोज जाते थे। आज जिस तरीके से आप जरी के बाहर आए, मौला की जरी के पास से आए, तो आपके माथे पर पसीना था। ये वजह क्या थी? तवज्जो करेंगे तो फौरन मुकद्दस अर्दबेली ने कहा कि जब मैं गया और वहां पर इमाम से मुलाकात हुई, जरी से आवाज आने लगी इमाम अली अलैहिस्सलाम की। जब बात हुई तो आज इमाम ने सवाल किया कि मुकद्दस, क्या तुम मेरे बेटे की इमामत के कायल नहीं हो? क्या तुम मेरे बेटे की इमामत के कायल नहीं हो? मेरे बेटे मतलब हज़रत हुज्जत अलैहिस्सलाम वस्सलाम। यानी पहले इमाम ने 12वें इमाम की तरफ इशारा किया कि मुकद्दस, क्या तुम हमारे बेटे की इमामत के कायल नहीं हो? फौरन कहा क्यों नहीं है? वो हमारे आका है, हमारे इमाम है, वो ज़माने की मौला है, वो हुज्जत खुदा है। तो कहा फिर अपने सवालों के जवाब मेरे बेटे से क्यों नहीं पूछते?
तुम अपने सवालों के जवाब मेरे बेटे से क्यों नहीं पूछते? क्योंकि वो हुज्जत खुदा है, वो वक्त का इमाम है, इमाम ज़मान है। वो तुम लोगों को पर अपनी नज़र रहमत बनाए हुए है। आज जैसे ही मुक़द्दस अरब बेली ने सुना, परेशान हो गए कि क्या कह दिया मौला अली अलैहिस्सलाम ने। माथे पर पसीना आ गया, परेशानी के आलम में निकले। और जब निकले तो वहाँ पर जो ज़रबत लगी थी, जब वहाँ पर पहुँचे तो वो जो नूर साथे था वो कोई और नहीं था, वो 12वें इमाम इमाम मेहदी आपको समा क्या है, तकी कैसे बनता है, ये तकवा क्या है, वो इमाम थे। ये कौन पूछ रहा है? शागिर्द पूछ रहा है। अब्दुल्लाह इब्न अली जो शागिर्द है वो पूछ रहा है। कहा जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैंने सलाम किया, तो मौला ने मुस्कुरा कर सलाम जवाब दिया, मुस्कुरा कर एक जवाबी नजरों से। जैसे आप किसी को सलाम करें, आप किसी से कुछ पूछे, एक दिन वक्त के बाद 2 दिन के बाद जब वो आपसे मिले तो वो कहे कि हाँ हमने कुछ पूछा तो बताए नहीं, और मुस्कुराने के अंदाज में। तो वैसे ही इमाम मुस्कुराने लगे। तो शागिर्द ने पूछा क्यों मुस्कुरा रहे थे? कहा इसलिए मुस्कुरा रहे थे, अभी तक आ नहीं रहे थे। जब मेरे जद ने कहा तो भले आ गए हो यहाँ। सलवात पहना करते आने और सलवात पहन करते आने। मुक़द्दस अब्द बेली काफी मसला क्या था? का मसला ये था कि मैं किताब लिख रहा, जरा इल्मी मामले में मैं फंस गया था, और ऐसा फंसा कि दुनिया का कोई बंदा उसको हल नहीं कर सकता था, उसके इमाम की ज़रूरत थी। जब मैं पहले इमाम के पास पहुंचा, मौला अली के पास पहुंचा, तो उन्होंने कहा कि मेरे बेटे से राबता करो, मेरे बेटे से राबता करो। तो जब वहाँ से इशारा मिला नजफ़ अशरफ से, तो मैं कहाँ पर पहुँचा? कूफे पहुँचा। मैं कहाँ पर पहुँचा? कूफे पहुँचा। अच्छा, जब एक बात जो रह गई थी कि 12वें इमाम ने कहा कि जब मेरे जद ने कहा तब तुम यहाँ पर आए। मुक़द्दस अब्द बेली ने कहा मौला आपको मैं कहाँ तो ढूंढूं, आपको मैं कहाँ पाऊं? एक जुमला मुक़द्दस अब्द बेली की ज़बान से निकल गया, मौला आप तो गैबत में। बस इतना सुनना था कि मौला तड़प गए, और तड़पने के बाद एक जुमला कहा कि मुक़द्दस मेरे शियों के लिए गैबत नहीं है। अगर मेरा चाहने वाला आज मुझे याद कर ले तो मैं अपने चाहने वाले के पास पहुंच जाऊं। एक सलवात पढ़े उम्मत यार। और सलवात पढ़े उम्मत यार। इमाम को बुलाएंगे तो यकीनन इमाम आपके लिए हाजिर है। और हमारे पास दलील भी है कि आयतुल्लाह बाकर सिस्तानी साहब के वालिद साहब मस्जिद में जाते थे, रोज़ अमान करते थे इमाम से मुलाकात के लिए। लेकिन एक दिन ऐसा देखा कि मस्जिद से एक नूर साते हुआ, जिस्मानी शक्ल में एक नूर साते हुआ, और वो मस्जिद के बाहर गया। बाकर सिस्तानी आयतुल्लाह बाकर सिस्तानी उस नूर के पीछे पीछे गए। वो समझ गए कि ये कोई और नूर नहीं है, ये वक्त का इमाम है। पीछे पीछे गए तो क्या देखा कि वो नूर के घर में दाखिल हो गया। मैं समझ नहीं पाया कि ये नूर किस घर में क्यों दाखिल हो रहा है। जब मैं गया तो क्या देखा कि उस घर में एक मोमिना का इंतकाल हो गया था। वो नूर वहाँ पर गया, जब वापस होने लगा तो फिर मैं दरवाजे के पास खड़ा था। आयतुल्लाह बाकर सिस्तानी कह रहे हैं कि नूर मेरे करीब आया और कहा बाकर सिस्तानी अगर हमसे मिलना चाहते हो तो किसी आमाल की जरूरत नहीं है, इस मोमिना के जैसा अपना किरदार बना लो, वक्त का इमाम खुद तुमसे मिलने आ जाएगा। सलवात पढ़े अज़मत आले या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह कुनू मअस सादिक़ीन। आए वो
हो कि जो ईमान ले आए, अल्लाह उनसे बताती है कि तक़वा इलाही अख्तियार करो, मुत्तकी बन जाओ और कुनू मा सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। अहले बैत की सीरत पर अमल करो, अहले बैत के रास्ते को फॉलो करो, और यही कहा गया है कि सच्चों के साथ हो जाओ, मतलब अहले बैत के साथ हो जाओ। मैं आपके सामने एक आखिरी बात अर्ज करके मैं धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ आ जाऊँ कि ज़रा आप मुक़द्दस अर्ज़-ए-बेली का जब ये मामला मैंने छेड़ दिया तो इसको और कंप्लीट कर दूँ कि मुक़द्दस अर्ज़-ए-बेली जैसे बच्चे पैदा क्यों होते हैं और कैसे होते हैं। अभी आपने खुतबे में शादी के सिलसिले से और उससे पहले की सारी बातें आपने सुनी है, वो आपके जहन में खाता होगा तो मेरे लिए आसान हो जाएगा गुफ्तगू को आसान आपके सामने बनाकर हो कि मुक़द्दस अर्ज़-ए-बेली के वालिद साहब इतने मुत्तकी थे, इतने परहेज़गार थे, इतना तक़वा इलाही को अख्तियार करते थे कि बता रहे हैं कि नजफ़ अशरफ में नहीं, दूसरी जगह जहाँ पर वो रहते थे इस पार में, वो एक रास्ते से जा रहे थे, पढ़ाई करके वापस आ रहे थे कि रास्ते में उनको भूख का एहसास हुआ। तवज्जो करिएगा, एक सलवात पढ़े बते आने वाला ये सुना हुआ होगा हमारे बुजुर्गान का, लेकिन मैं चूंकि सहारा ले लेता हूँ उसको। आज ऐसे ही भूख का एहसास हुआ, जिस रास्ते से आ रहे थे तो एक नहर से पानी बह रहा था, उस नहर में एक सेब जा रहा था बहता हुआ। हालांकि इस किस्से को आज के हमारे बड़े भाइयों ने अपने गौसे आज़म से जोड़ दिया है। जब इंसान को नहीं मिलेगा किसी तरीके से चुराता रहेगा, पहले खलीफा चुराते थे, फिर बाप चुराते थे, अब बेटे चुरा रहे हैं। एक सरवात पढ़े अज़मत आले फितरत में है, इनकी आदत में है, इनकी नस्ल में है। इस वाक़े को अपने गौसे आज़म से भी जोड़ दिया। हाँ, तवज्जो करिएगा, भूख का एहसास हुआ, रास्ता है, वो पुराना दौर है, 9वीं सदी चल रही है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि आप खोलिए फौरन ऑर्डर कर दीजिए, 10 मिनट में आ जाएगा, खा लीजिए, पिज्ज़ा खा लीजिए, बर्गर खा लीजिए, सारी चीज़ें। वो ज़माना गुजरा था, चारों तरफ सन्नाटा था, खेत की हरियाली थी, एक नहर थी, वहाँ से पानी बह रहा था, उसमें एक सेब जा रहा था बहता हुआ, उठा लिया, खा लिया। जब खाया तो एहसास हुआ खा तो लिया है, लेकिन ये तो मेरे लिए हराम हो गया है। तवज्जो करिएगा, ये तो मेरे लिए हराम हो गया है। जब तक इजाज़त शामिल हाल ना हो तब तक ये मेरे लिए हलाल नहीं होगा। बुजुर्गान जानते हैं, आम के सीजन में लुंगी पहन के बहुत से लोग जाते थे, और ये नहीं देखते थे कि किसका पेड़ है, एक ढेला मारा जहां लग गया, प्यारे भाई 10 आम गिरा, लुंगी में भरे लेके चले गए। और ये भी नहीं मालूम कि दरख्त का मालिक कौन है, आम का मालिक कौन है। सवाल पे है मजे आने वाला। जहां से आया है वहीं पर चलूं, कोई मिल जाएगा उसका मालिक। तो पानी जहां से आ रहा था उस रास्ते पर वो गए, तो गए क्या देखा कि एक बाग है, चारों तरफ से जो है दीवार लगी हुई है, दरख्त जो है उसकी जो शाखें है दीवार के बाहर है, तो उसी में से एक सेब का दरख्त था। अब वहां से सेब टूटा और पानी में गिर गया, वो बहता हुआ जा रहा था। अब्दुल बात किया, दरवाजा खोला गया, कहा हाँ मैं फला रास्ते से जा रहा था, भूख का एहसास हुआ, सेब जा रहा था, मैंने खा लिया। कहा फिर क्या मसला क्या है आपका? कहा आप इजाज़त दे दीजिए कि वो मेरे लिए हलाल हो जाए, क्या आपकी रज़ा शामिल है? कहा भैया मालिक उसका नजफ़ अशरफ में है, इसका मालिक जो है कहाँ है? नजफ़ अशरफ में है। बहुत परेशान हुए, इस तरीके से अपने आप को देखिए, एक सेब को हलाल कराने के लिए कहाँ हो गए। समझो, हाँ नजफ़ अशरफ में तो बड़ी अच्छी बात है, चलो
आगे चल के मौला के ज़री की ज़ियारत भी हो जाएगी और ये अपने लिए हलाल भी करा देंगे, लेकिन पहले हलाल कराएंगे। समझो करिएगा, पहले हलाल कराएंगे फिर जाएंगे ज़री की तरफ। समझो करिएगा। वो निकले एड्रेस पूछते हुए वहां पर पहुंचे, तब कुछ बात किया। कहा कौन भाई? कहा फला जगह से आए। कहा बताइए। कहा वहाँ आपका एक बाग है। कहा वहाँ पर गए थे, वहाँ आपका जो माली है उससे मैंने पूछा, उसने आपका एड्रेस बताया। मसला क्या है? हाँ मसला ये है कि आपके दरख्त से, आपके सेब के दरख्त से एक सेब फूटा, पानी में गिरा, बहता हुआ जा रहा था, मैंने खा लिया। कहा खा लिया तो खा लिया। कहा खा लिया तो खा लिया, लेकिन आपकी रजा शामिल है। आप परमिशन दीजिए, आप इजाजत दीजिए कि मेरे लिए हलाल हो जाए। पहले जो घर वाला था, जो मालिक था ना, वो भी देखने लगा। उतनी दूर से आया एक सेब को हलाल करने के लिए है तो कोई आदमी है जो एक सेब को हलाल कराने के लिए यहाँ तक पहुंचाया और फिक्र करने के बाद कहा हलाल कर दूंगा, परमिशन दे दूंगा, यहाँ जायज है तुम्हारे लिए, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? शर्त ये है कि हमारी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। हमारी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। कहा ये क्या मसला है? अगर इजाजत दे देते तो मैं जाके मौला की ज़री की ज़ियारत कर लेता, लेकिन पहले मैं उधर इसलिए नहीं गया कि ये जो हराम था मेरे लिए, ये मेरे जिस्म में गया है। पहले मैं इसको हलाल कर लूं, फिर अपने आप को मैं मौला के करीब पहुंचा दूं। अरे नहीं गौर किया आपने? पहले इसको मैं हलाल कर लूं, फिर मौला के करीब पहुंच जाऊं। यानी एक मैसेज दे दिया कि वहां जाना है तो रूहानी यानी अपनी रूह को भी पाक करना पड़ेगा, अपने जिस्म को भी पाक करना पड़ेगा, अपने जाहिर को भी पाक करना पड़ेगा, बातिन को भी पाक करना पड़ेगा। फिर उसने सोचा कि आया है ज़री की ज़ियारत करने के लिए और कह रहा है कि पहले जायज हो जाए फिर वहां जाऊं, वरना इस सूरत हाल में मैं वहां तक मौला की ज़री के पास। हाँ मेरी शर्त वही है, मेरी बेटी से शादी कर लो, निकाह कर लो, हमारे लिए जायज है। कहा अच्छा ठीक है। कहा लेकिन एक बात और है। कहा क्या बात है? कहा मेरी बेटी अंधी है, लूली है, लंगड़ी है, गूंगी है। आज के जमाने का कोई होता ना, देखो एक तू आम एक तू सेब खाए, दूध भले नहीं लो, लेकिन हमसे ये नहीं होगा कि हम किसी लंगड़ी लूली से जाके शादी करें। लेकिन वो देखिए, उनका किरदार देखिए कि मुत्तकी कौन होता है, किस तरीके का तकवा है। कहा यार एक जिंदगी में मैंने कभी कोई हराम नहीं खाया, लेकिन एक बिना परमिशन के खा लिया, अब उसको हलाल कराने के लिए अगर निकाह करना पड़े तो चलो कर लो। कर लिया निकाह। वो वक्त आया कि जब गुजरे में वो गए, और जब करीब गए तो जो दुल्हन थी उसकी बेटी, जो बाप ने कहा था कि अंधी है, गूंगी है, बहरी है, लंगड़ी है, देख नहीं सकती, बोल नहीं सकती, चल नहीं सकती, अपने हाथों को हिला नहीं सकती, उसी दुल्हन ने सलाम कर दिया हाथों को उठा के। उसी दुल्हन ने हाथों को उठा के सलाम कर दिया। अब जैसे ही हाथ को उठा हुआ देखा, जबान से सलाम निकला, आंखों को देखा, रुके नहीं बाहर, और बाप को पकड़ा। कहा क्या मामला है? कहा क्या मामला? कहा आपने कहा था कि अंधी है, गूंगी है, लंगड़ी है, बहरी है, लेकिन आपकी बेटी तो पूरी मुकम्मल सही है, सही और सालिम। कहा हाँ मैंने कहा था, समझो करिएगा। कहा हाँ मैंने कहा था अंधी है, मतलब अपनी आंखों से आज तक उसने कुछ गलत नहीं देखा। गूंगी है मतलब आज तक अपनी जबान से किसी के लिए कुछ गलत नहीं कहा। लंगड़ी है मतलब अपने पैरों से चलकर कहीं गलत जगह नहीं गई, मतलब हाथों हाथ
इबादत गुजार है, तो मैं इसके जैसा लड़का ढूंढ रहा था। इसलिए कहा गया है ना कि लड़के जैसा को तलाश करो, लड़की जैसा को तलाश करो। तो मैंने कहा कि बारेला मौला की सरी के करीब गया कि मौला मैंने हर जगह ढूंढा, लेकिन मेरी लड़की जैसा कुफो कहीं नहीं है। अब रिश्ता आप पर है कि आप मेरी लड़की का रिश्ता लगाइए। ये तुम आए नहीं हो, तुम भेजे गए हो, तुम मेरी लड़की का कुफो हो। और इसीलिए जब तुमने सेहब वाली बात की तो मैं पहचान गया कि जो दरवाजे तक आए हो ना, मेरे इमाम ने मेरी बात को सुन लिया, मेरे मौला ने मेरी बात को सुन लिया। तो जब ऐसी माँ हो और ऐसा मुत्तकी बाप हो और उनके मिलने के बाद जो बेटा पैदा हो, उसको कहते हैं मुकद्दस अर्द बेली। बात बढ़िया समझ आ जाए। उसको कहते हैं मुकद्दस अर्द बेली। और इसीलिए कहा गया है कि ऐसे मुत्तकी बोलो, ऐसे परहेजगार करो, ऐसा तक़वा इलाही अख्तियार करो कि जो अल्लाह आपसे चाहता है। और कसम खुदा की यही मुत्तकी, यही तक़वा इलाही, यही परहेजगारी अगर आपको देखना है तो करबला के मैदान में आके देखिए। कैसे मुत्तकी, कैसे आबिद थे, कैसे अपने ईमान की मारिफत रखने वाले थे, कैसे अपने आका को पहचानने वाले थे। कसम खुदा की ये सईद, ये मुस्लिम इब्ने औजा, ये ज़ुहैर, ये हबीब, ये कौन थे? ये शहदाई थे अपने आका के। ये जानते थे कि अगर कोई करबला के मैदान में या इस दुनिया में अगर कोई रहबर है, कोई पेशवा है, कोई आइडियल है तो वो हुसैन इब्ने अली। कसम खुदा की मुत्तकी हो जाओगे तो अपने हदफ को पहचान जाओगे, अपने रास्ते को पहचान जाओगे, अपने आइडियल को पहचान जाओगे, अपने इमाम को पहचान जाओ, अपने इमाम की मारिफत हासिल कर लोगे। बादादारा ने इमाम मुस्लिम करबला के मैदान में देखिए, अमीर इब्ने मुस्लिम कहता है कि शबे आशूर दुश्मनों की तरफ मैंने देखा कि तलवार पर धार चली जा रही है, तलवार को तेज किया जा रहा है, नैज़े को बनाया जा रहा है। क्यों? कल हुसैन इब्ने अली के जानिसारों पर हमला करना। लेकिन जब मैंने हुसैन के खैमे के करीब देखा आया तो क्या देखा कि इनके जानिसारों के खैमे से, इनके सहाबियों के खैमे से शहद के भिनभिनाने की जैसी आवाज आती है ना, जब शहद अपने छत्ते पर बैठकर भिनभिनाती है तो उस तरीके की आवाज आ रही थी। लेकिन जब मैं और करीब गया ना तो क्या देखा कि ये जानिसार इबादत खुदा में मसरूफ है। कोई नमाज में है, कोई तस्बीह में है, कोई सजदे में है। कसम खुदा की ऐसे चाहने वाले थे। मरहूम के सारे सवाब की मजलिस से रिवायत में है कि रोज़े आशूरा जब सब शहीद हो गए, अजीज भी शहीद हो गए, जिगर के टुकड़ों की बारी आई वो भी शहीद हो गए, तो अब वो आगे बढ़ा जो फौज का अलमबरदार था, जो फौज का कमांडर था, जो सकीना की आस था, वो आया और कहा आका जान मरने की इजाजत दे दीजिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने फौज के अलमबरदार को हजरत भरी निगाह से देखा और कहा, ए भैया अब्बास, तुम तो मेरी फौज के अलमबरदार हो। बस इतना सुनना था कि जनाब अब्बास ने दाहिने देखा और बाएं देखा और एक जुमला का ये आका इतना बता दीजिए, अब वो फौज कहाँ है कि जिसकी मैं अलमबरदारी कर सकूं। अजरुकुम अल्लाह, मौला आपको कोई गम न दे सिवाय गमे सैयद शोदा के। बस इतनी ही देर में खैमे से छोटे छोटे बच्चों की आवाजें आई, आला ताश, हाय प्यास, हाय प्यास। बस इतना सुनना था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, ए भैया अब्बास, लड़ने की इजाजत नहीं है। हाँ, इजाजत इतनी है कि जाओ बच्चों के लिए पानी का इंतजाम करो। बस इतना सुनना था कि उठे और जनाब सकीना के करीब आए, उस खैमे में आए जिसमें जनाब सकीना रहती थी और कहा, ए बेटी सकीना, लाओ अपना मशकीज़ा अपने चचा के हवाले कर दो, तुम्हारा चचा जा रहा है पानी लेने के लिए। बस इतना सुनना था कि नन्ही सकीना उठी और छोटे छोटे
बच्चों अब रोना बंद करो, अरे मेरा चचा जा रहा है, पानी लेकर आएगा। हजरत उमर बड़े तमीर वसाए भाई, मैंने रिवायत को छोड़ दिया है, मशकीज़ा किया। ये बात जनाब ज़ैनब में कुलसूम को पता चल गई कि हाय हमारा शेर फुरात पर जा रहा है। करीब आई, बाजुओं का बोसा लिया, मुझे नहीं मालूम, रिवायत बड़ी तवील है, मैं छोड़ देता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ। बहनों ने, बीवियों ने न जाने किस दिल से उसको रुखसत किया जो उनकी ढारस था। रिवायत बताती है कि जैसे ही अपने घोड़े पर सवार होना चाहते थे ना, इमाम हुसैन आगे बढ़े और बढ़ने के बाद कहा, ये भैया अब्बास अपना अलम मेरे हाथ में दे दो। हाथों में आना था कि जिस पर लिखा था दस्तूर में अल्लाह है फतहुल करीम, बस उसके नीचे इजाफा कर दिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने। क्या लिखा? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ए भैया अब्बास जाओ, खुदा हाफिज़ व नासिर। जनाब अब्बास साहब फरात पर कब्जा किया, फौज अश्किया को दूर दूर तक भगा दिया, चिल्लू में पानी लिया और उछाला। उछालने का मकसद सिर्फ ये था कि बताया ये हमारे कब्जे में है, तुम्हारे कब्जे पे नहीं है। अगर अली का शेर चाह जाए तो तुम जितने हो सब खत्म हो जाओगे, लेकिन आका की रज़ा कुछ और है, मसलहत खुदा कुछ और है। बाज़ादारा ने इमाम मज़लूम करबला मश्क में पानी भरा, वापस लौटे, दाहिने बाजू को कलम किया गया, बाएं बाजू को कलम किया गया, सर पे गुर्द लगा। जनाब अब्बास ज़मीने करबला पर आए, मशकीज़े पर तीर लगा, सहरा पानी बह गया। आवाज दी, ए आका मेरी मदद को पहुंचिए। बस जैसे ही जनाब अब्बास ने आवाज दी है ना, एक जुमला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये कहा और कह के आगे बढ़े, या अबी अला नहीं का सिराज। ए भैया अब्बास तुम्हारे मंदिर से मेरी कमर टूट गई। बड़े आराम से आपने सुना, आखिरी के दो जुमले सुनिए। इमाम हुसैन करीब आए, जनाब अब्बास का सर अपने ज़ाहू पर रखा। ए भैया अब्बास कोई हाजत है तो बयान करो। ए आका एक आंख में तीर पे बस्त, दूसरी में खून जमा है, तीर को निकाला, खून को साफ किया। अब्बास कुछ कहना चाहते हो? आका बस यही कहना चाहे, मेरे मरने के बाद मेरे लाशे को खैमे में ना ले जाइएगा। इसलिए सकीना से शर्मिंदा हूँ, वादा करके आया था कि पानी लेकर जाऊंगा, लेकिन हाय पानी का एहतमाम न कर सका और कोई आदत नहीं आका। बस जैसे ही जनाब अब्बास ने कहा, आखिरी जुमला सुलेमान में हुसैन ने कहा, ए भैया अब्बास मेरी तमन्ना है, पूरी करोगे? ए आका आपकी क्या तमन्ना है? आज जब से इस दुनिया में आए हो मुझे आका कह के बुलाया, एक बार भैया कह के बुला दो, एक बार भैया कह के बुला दो। नहीं, कादरे गिरामी का हुक्म है, ए अब्बास जब तक जिंदा रखना, इनको अपना आका समझना। मैं इतना सुनना था कि इमाम हुसैन ने कहा कि इमाम वक्त होके कह रहा हूँ, एक बार भैया कह के बुला दो। बाज़ादारा ने इमाम मज़लूम करबला, अरे जैसे ही जनाब अब्बास की ज़बान से निकला, आए भैया हुसैन, अरे
معاف فرما، جو پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو مقروض ان کے قرض کو ادا فرما، ہمارے نام ہے محمد والے محمد حاضرین کے دلی حاجات کو پورا فرما، اپنے خواہشات کو قبول فرما، ہمارے نام ہے محمد والے محمد مرحوم کی مغفرت فرما، جو ہمارے معصومین علیہ السلام کو مقام عطا فرما، ہمارے نام ہے محمد والے محمد فرمائے اکا براج کرام کی حفاظت فرما، ہمارے نام ہے محمد والے محمد جہاں جہاں شیعہ نے قرار ہے ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے نام ہے محمد والے محمد معصومین علیہ السلام کے روضہ مقدسات کی حفاظت فرما، ہمارے نام ہے محمد والے محمد بالخصوص سیریا میں جناب زینب سلام اللہ علیہ اور جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے روضے کی حفاظت فرما، ہمارے نام ہے محمد والے محمد منتخب ابن حسین حضرت حجت علیہ السلام کے ظہور میں تعلیم فرما، ہم سب کو ان کے آبا و اجداد شمار فرما، آپ اللہ کو گزارش ہے محمد سورہ الحمد کے مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید حسن نجوی ابن عباس حسین نجوی اور جملہ مرحومین کی روح کو پڑھ کے حساب اللہم صلی علی اللهم صل على محمد